Hello everyone, this is Dr. Neeta and I welcome you all to Neeta's studio. Today we are having with us Josna Kaur. She is a pre-primary Okay. teacher, NTCS student. Welcome Josna. Thank you so much, ma'am. So yes, to the viewers, I would like to again remind you that we are doing some interviews, some for the survey purpose. Like you must be knowing that Educational Kranti is the movement wherein we work for educators' empowerment and to understand educators in a better way. We are doing these edu talks, and within these edu talks, we generally try to find out the loopholes in the education system or whatever kind of challenges educators are facing, so that whatever project, whatever movement we are working on for empowering educators and transforming generations and doing that educational reform in education industry, that should become smooth. So this is our primary data collection through interview method. So let's begin with this conversation then. Joshna, are you ready? Yes, ma'am. Okay. तो जस्ट जोस्ना, फर्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर जर्नी. मुझे आपके बारे में आप बता सकते हो कि आप कैसे आए एजुकेशन फील्ड में, आप टीचर कैसे बने, आपका जर्नी कैसे था, आपने क्या क्वालिफिकेशन किया है, आपका आपके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे. Yeah. Hello, everyone. My name is Jyotsna Kaur Rai, and I have completed my MA in Geography and B.Ed also. Then I have started my new job in 2013 in a pre-primary school at a first class students. Then I have फिर मैंने then I have मैंने start किया PP sorry. Then I have started competitive some course. Then I have मुझे लगा कि something new for the कुछ नया किया जाए for the kids. Then again I joined pre-primary school in Jabalpur. At 2 years I joined there. Then again I teached some students like PGDCS students in a computer course. उनको मैंने पढ़ाया. Then after marriage I stopped this journey because for some reasons, and then again I started my journey now I am doing a job in kids school. So recently you have started your pre-primary job. Yeah. Okay. And you mentioned you were teaching to PGDCA and all. So what type of computer course or degree, diploma you have done? Yeah. I am also at PGDCA qualified student. So then I started studying of PGDCA students like a simple course, simple languages and Understood. word. Understood. So you, whatever language you're comfortable, Josna, if you're comfortable in Hindi, you can speak in Hindi. Language is not the barrier. Okay. Yeah. I hope you are well. आपकी तबीयत ठीक है ना? आप हिंदी में something is good. हाँ, okay. So, and don't get conscious about it. This is just a normal call wherein we are trying to understand. And मैं suppose की हूँ, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन तो नहीं होना चाहिए. आपका अपना रेगुलर क्लास जैसा ही है ना? So yes. The second question I would like to understand regarding your current profile. तो आप जो अभी प्री प्राइमरी में जॉब कर रहे हो, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानना है कि क्या कोई डिफिकल्ट स्टूडेंट्स है या फिर कोई challenges during your classroom management you really want to highlight and you really want to overcome those challenges because of which you would like to highlight those things. So I just want to understand those kind of challenges during handling difficult student and classroom management. Anything? Yeah. My first challenge is, madam, there are lots of students are there. Some students are very good in study and some students are not very poor and some is normal. But poor students not understand things जल्दी से नहीं समझते वो, तो उनको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है हमको. तो इस रीज़न से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टाइम ज़्यादा देने से हमारा जो कोर्स होता है वो उस टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं हो पाता है.
सपोज हमको आज ए से एल तक पढ़ाना है, एज एग्जाम्पल। तो जो बच्चे होते हैं जो थोड़ा लो होते हैं, थोड़ा दिमाग लो होते हैं स्टडी करने में, उनको राइटिंग प्लस उनका वर्बल साउंड समझाने में, उनको कॉन्सेप्ट समझाने में ही हमको थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और उसके बाद जो स्कूल होता है उसमें, जैसे आपको पता होगा, अभी मिड टर्म्स एडमिशन्स होने लगे हैं। तो मिड टर्म एडमिशन्स होने के कारण क्या होता है कि वो टीचर्स बोलते हैं कि इनको भी, जो स्टूडेंट्स पहले से थे उनको भी वैसे ही ट्रीट करके वैसे ही आपको पढ़ाना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये समझ नहीं आता है हम लोगों को। फिर ये रीजन है कि फिर आप वो बच्चे जो अभी नए आए मिड टर्म में आ रहे हैं उन पर ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे कि आप पुराने बच्चों पे करेंगे। वो एक रीजन है। देन थर्ड प्रॉब्लम इज आफ्टर कोविड, बच्चे वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। वो ज्यादा इतना नहीं सुनते टीचर्स की, अभी नहीं सुनते। पहले मेरे भी कोचिंग क्लासेस थे, मैं पढ़ाती थी तो बच्चे सुन लेते थे। अभी उनको कितना भी बोलो आपकी, आप उसको कितना भी गैदर कर लो, यानी कि आप किसी भी चीज में आप उनका माइंड डाइवर्ट कर दो। सपोज बुक्स दे दो, ड्राइंग के लिए बुक्स दे दो कि हम दूसरों बच्चों को भी देख रहे हैं, आपके साथ जो अच्छे हैं आप उनके साथ हम दूसरे बच्चों को भी देख रहे हैं। तो वो उतना नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हमेशा शोर होना थोड़ा सा वो परेशान करते ही है। वो मैंने बहुत चैलेंज देखा है। बच्चे क्लास में इतना ज्यादा डिसिप्लिन नहीं हो पाता जैसे पहले था। वो डिसिप्लिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। ऊपर प्लस पेरेंट्स भी होते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि आप हैंडल नहीं कर पाते इतने अच्छे से। उनको भी समझना चाहिए कि टीचर्स एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, और वही सेम प्रॉब्लम कि आपके बच्चे पर ज्यादा ध्यान देगी तो दूसरे बच्चे पर मैं कैसे ध्यान नहीं दूंगी। और आपका बच्चा, उनको ये समझना चाहिए कि मेरा बच्चा ठीक है, वीक है, तो उनको घर में भी पढ़ाना चाहिए। तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। सपोज एग्जाम्स टाइम होता है कि हम रिवीजन लेते हैं, रिवीजन लेने के बाद उनको बोलते हैं घर में इतना इतना आपको कवर करके आना है। उसके बाद भी स्टूडेंट्स होते हैं कि वो नहीं कवर कर पाते इतना। उनको आके एग्जाम्स में, भी एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें भी पूछते हैं जैसे कि आप ये कुछ भी सपोज 1 to 10 नंबर भी बोलना है तो आधे नंबर उनके गायब हो जाते हैं। तो वही हम लोग उनको टीचर्स को भी समझाते हैं या पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि टीचर्स 4 या 5 आवर्स का जो टाइम है उसमें 30 बच्चों को, अगर आपको टाइम स्पेंड करना है, 30 बच्चों के साथ हमको टाइम स्पेंड करना है, तो पर स्टूडेंट्स से हम उतना इन्वॉल्व हो तो पाते हैं, पर जो वीक है हम उनको इतना नहीं कर पाएंगे। करते हैं पर इतना नहीं हो पाएगा कि आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। Right. Fine. So I understood you are facing a lot of challenges when it comes to number of student, when it comes to handling individual student, because when it comes to individual attention, other students are making noise, and the distraction level is very high, and parents are also more pampered about students, and because of which they are having a lot of expectations, and then they are asking for something like very individualize or customize, even though they should also work on it, but they are not giving that efforts or time, and actually expecting it from the school itself. Okay, so I guess I understand. So we will come to the solution part later on, but right now we will just talk about challenges. Now, already you mentioned one case regarding the parent, but apart from that, any kind of challenges you face from the guardian or parent side, that difficult parent, मतलब होता है ना जो हमेशा कुछ they are having a lot of expectation or complaints or some sort of कभी ना कभी कुछ ना कुछ रहता ही है। तो if at all you would like to share anything कि कौन से parent expectation पे आपको लगता है कि ये overcome होना बहुत जरूरी है, तो you may feel free to share those kind of experiences. या जैसे सपोज राइटिंग के लिए ले लो आप। राइटिंग होता है स्किल, राइटिंग स्किल बच्चों का। छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं कि पहले बॉक्स से स्टार्ट करते हैं, और बॉक्स में भी हम उनको डॉट्स देके स्टार्ट करते हैं। हेलो, इसमें हाँ, डॉट्स से स्टार्ट करते हैं। बट अभी वो नर्सरी का टाइम था, नर्सरी में हम डॉट्स कर सकते हैं। अभी हमको फ्री हैंड लिखना पड़ता है इधर सीनियर क्लास एंड जूनियर क्लास में। तो उनका ये भी प्रॉब्लम्स होता है, जो टीचर पेरेंट्स का प्रॉब्लम्स होता है कि हैंड राइटिंग भी ऑल्सो हैंड राइटिंग सब साथ सब आते हैं कि हैंड राइटिंग मैडम अच्छा नहीं लिख रहे हैं, स्लो लिख रहे हैं।
मेन प्रॉब्लम तो स्लो लिखने का है, हैंड राइटिंग तो ओके बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल किड्स, बट मेन इज स्लो राइटिंग प्रॉब्लम। तो तो राइटिंग के अलावा पूरा और कोई मेजर स्लो इश्यूज? राइटिंग के और वैसे मेन इशू नहीं है, स्लो राइटिंग के कारण क्या होता है उनका जो कंप्लीट नहीं हो पाता, सम स्टूडेंट्स का क्लास वर्क भी कंप्लीट नहीं होता। तो क्लास वर्क के बाद होमवर्क भी जब हम देते हैं तो फिर मैडम ये इतना नहीं हुआ, करना था। ओके। आप कौन से क्लास को हैंडल करते हैं दोस्ता? जूनियर और सीनियर। जूनियर एंड सीनियर। अच्छा, तो जूनियर सीनियर में मोस्टली आपका मतलब कैपिटल एबीसीडी तो नर्सरी में हो गया, तो स्मॉल एबीसीडी, और सीनियर में तो 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर वर्ड। 2 letters 3 letters, यस यस। अच्छा, तो ये आपका मतलब मेजर राइटिंग से रिलेटेड जो है वो एक कंसर्न रहता है पेरेंट्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई कंसर्न है पेरेंट का? वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है मिसेस। ओके, ओके। ओके, fine. Or regarding maybe administrative work, or what kind of support or training you are currently getting from your school management, and what you expect ki, what type of like improvement or enhancement, if at all, you would like to do in the education industry. So what kind of support you being an educator would like to extend so that your performance become better and you become more empowered in your role? Anything you would like to share? Yeah, ma'am, my administration is very good, but politics is everywhere. आप इट्स योर इंस्टीट्यूट एंड माय इंस्टीट्यूट एंड एवरीवेयर। सपोज अभी हुआ था, प्रिंसिपल टीचर ने बोला था कि आप अपने अपने हम अपने पेपर्स खुद बनाते हैं, देन वर्ड पे आप खुद करेक्ट करके आप उसको सेंड करेंगे। तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वन टीचर हैज देयर, नहीं मैं करूंगी, इट्स ओके करो। तो वो पॉलिटिक्स खेलती है, क्या करती है वो सारा उसने बना दिया। उसके बाद जब प्रिंसिपल टीचर ने पूछा ये किसने बनाया, तो उसने बोला मैडम मैंने बनाया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। दैट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स इज माय स्कूल। फर्स्ट इज, एंड सेकंड इज वही, यस आई एम बेस्ट, आई एम बेटर, दिस टाइप ऑफ सम टीचर्स आर देयर कि मैं ही अच्छी हूँ, मैं ही कर सकती हूँ। सपोज अगर कोई जूनियर टीचर आ रही है पढ़ाने के लिए, तो हमको भी उसको देना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ आप कर सकते हो। तो आप उनको कुछ नहीं बताओगे, उनके साथ हैंडल नहीं करोगे अच्छे से, तो आप कैसे करोगे उनको, वो कैसे हमारे साथ एडजस्ट करेंगे। तो वो करने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, वहां पर हल्का सा है, पर है मिसबिहेवियर है वहाँ थोड़ा स्कूल में। तो ये तो अमंग लाइक कलीग्स ही हो गया, मतलब वॉट एवर थिंग्स यू नो, सो दिस इज अमंग एट एजुकेटर्स लेवल ओनली. Anything at the administration level, I know that organizations are always good, they are having their good policies, but again everyone has the scope of improvement, है ना? वो भी और better हो सकते हैं, तो anything लाइक इस टाइप का सपोर्ट अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से मिल जाए तो देन मेरा जो प्रोफाइल है और भी अच्छा हो जाएगा, मैं और भी अच्छे से एम्पावर कर पाऊंगी। ऐसी कुछ चीजें आप चाहते हैं कि आपको कुछ सपोर्ट मिले फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन? आई थिंक if you are getting everything, then that's fine. If at all you don't remember anything, फाइन। that's fine. So now, तो इट्स coming to the conclusion part of today's interview, I just want to understand what would be your suggestion, your message to all the aspiring educators. आप क्या कहना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे जो लोग टीचर बनना चाहते हैं या टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं? teacher is a very good job for the everywhere, because we teach that student, they are very small, and they his journey start with the this यहाँ से शुरू होती है, उसके लिए ठीक है। बट गुड टीचर होने के लिए हमको उस स्मॉल किड्स के साथ कैसा रिएक्ट करना है वो सब आना चाहिए। और आपका इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है कि आप वहाँ सब बता रहे हो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। वो सब उस जर्नी के लिए हमको सीखना चाहिए। Right. So और एस्पायरिंग टीचर्स ने नीता ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे आप बोलना Yeah, चाहते yeah, yeah, your institute are very good, man. You हैं? also improve my all the things, improve in my I improve my nature also.
अच्छा, सॉरी। फिर या देन पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थी, स्ट्रिक्ट है मींस यस नो, ये मींस नो, नॉट अबाउट अदर किड्स, माय किड्स के साथ भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, बट आफ्टर स्टूड यस, आपने जो थोड़ा स्टडी लिया हम लोगों की, नहीं बच्चों को ऐसे हैंडल करना चाहिए, ज्यादा शाउट नहीं करना चाहिए, थोड़ा पास जाओ उनके, धीरे से बोलो उनको, तो वो थोड़ा सा होते हैं, तो क्लास में थोड़ा तो हुआ है, थोड़ा डिसिप्लिन तो आया है। तो वो सब आपके कारण ही है। अच्छा, चलो, अच्छी बात है। एक्चुअली हम सिर्फ सर्टिफिकेशन देने वाले टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, आपको पूरा ट्रांसफॉर्म करने वाले टीचर है ना, टीचर्स ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट है। तो बिलीव इन होलिस्टिक ग्रोथ, एंड इसीलिए मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जरूरी है। वी शुड अंडरस्टैंड, है ना, कि क्या चीजें एक्चुअली हमें एम्पावर करने की जरूरत है, क्योंकि एक डिस्टर्ब माइंड दूसरे डिस्टर्ब माइंड को नहीं पढ़ा सकता। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज यस वेरी यस यस व्हेन इट कम्स टू टीचिंग यस समथिंग, यस यस यस। एंड वही जैसे हम आपने लोग। आपने आपने भी बताया था कि सपोज कभी ज्यादा गुस्सा आ जाए तो थोड़ा पानी पी लो, सांस ऊपर लो नीचे लो। वो सभी फॉलो करते हैं हम लोग, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बच्चा, जो बच्चे नहीं सुन रहे उनकी वजह से, फिर थोड़ी देर के लिए 2 मिनट बाहर निकल जाते हैं, पानी वानी भी कहते हैं, फिर सुन, हाँ चलो अब सेटल करो। अरे वाह, गुड गुड, तो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब जो यस टेक्निक यस पढ़ाई जा रही है वो यस। इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अरे वाह, गुड। So wonderful. It was really a fantastic discussion with you, Josna. And we understand whatever challenges or whatever opportunities are there. And definitely we will look forward for better opportunity. And I wish you all the best for your future. बहुत बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, है ना, एंड बहुत सारे थैंक बच्चों को एम्पावर करो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक योर यू टाइम। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू। चलो, बाय बाय। बाय बाय।